Hello friends, this is the fifth video lecture of contract law series. तो आज के वीडियो में we will discuss the difference between offer and invitation to offer. तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर को डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 2A as when one person signify to another person his willingness to do or not to do something with a view to obtain the assent of such person to such act, he is said to make an offer. तो ऑफर में क्या है कि when one person signify करता है his expression of willingness to do something with a view to obtain the assent of the acceptor. तो अगर मैं किसी को ऑफर दे रहा हूँ then I will expect that the acceptor will give his assent to that offer. So what is offer? I am asking someone to do or to abstain from doing something, and I also want his assent to my offer. तो offer मैं एक second person को दे रहा हूँ with an view to obtain his assent. लेकिन invitation to offer में क्या होता है कि I am not making an offer. What I am doing is I am making a statement so that the other person will give me an offer and it will be up to me to accept it or not. तो ये होता है invitation to offer. तो ऑफर के केस में क्या था कि अगर मैंने किसी को ऑफर दिया then I will expect some acceptance of it. I am making an offer with a view कि जो next person है वो accept उसको ऑफर को लेगा. लेकिन invitation to offer में I am making an statement and I am expecting the next person to make me an offer and then it will be up to me to accept it or not. तो यही definition है सबसे पहले offer का. an invitation to offer where a party without expressing his final willingness, मेरा ये final willingness नहीं है, मैं कोई offer नहीं दे रहा हूँ, I am just making a statement and I am making such certain terms on which I am willing to negotiate. Okay, so he is not making an offer but merely invites the other party to make him an offer on those terms and then it will be up to that person to accept it or not. ठीक है, अब इसका अगर एग्जांपल ले लें तो ऑफर के केस में क्या होता है कि मैंने अगर किसी को बोला कि आई वांट टू परचेज योर पेन फॉर ₹100, सो आई एम मेकिंग एन ऑफर एंड इट इज ऑन दैट पर्सन टू एक्सेप्ट इट और नॉट. लेकिन अगर मेरी मैं अगर कोई शॉप पे जाता हूँ, इस पे आगे केस भी है, और मैं अगर कोई गुड्स उठाता हूँ, कोई आर्टिकल उठाता हूँ, then that article is an invitation to offer by the shopkeeper and then I will have to make an offer to the shopkeeper and it will be up to him to accept it or not. तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया. तो इसीलिए मैंने इसमें देखा है कि जो कैटलॉग ऑफ बुक्स है ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है. अगर कोई शॉपकीपर हमें कैटलॉग ऑफ बुक्स देता है तो ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है. अब हमें उसमें से बुक्स सेलेक्ट करना है एंड देन वी विल मेक हिम एन ऑफर वेदर ही वांट्स टू सेल अस दैट बुक और नॉट. तो ये कैटलॉग ऑफ बुक इज एन इन्विटेशन टू ऑफर. सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट फॉर टेंडर्स आर ओनली इन्विटेशन टू ऑफर. जब टेंडर होता है या बिडिंग होती है तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है. नाउ वी विल गो, वी विल बिड, वी विल मेक ऑफर एंड द वन हु इज द हाईएस्ट बिडर प्रोबेबली विल get that thing. So it will be up to the person who is making the hammer. It will be up to him to accept that bid or not, that offer or not. So tender, bidding is सब invitation to offer है. ठीक है, इसमें एक केस है ये हैरिस वर्सेस निकरसन कि इसमें एक टेंडर होना था, एक ऑक्शन होना था, एक ऑक्शन सेल, तो वो बाद में कैंसिल हो गया. तो जो लोग ऑक्शन सेल में अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस जिनका खर्चा हुआ वो अपनी रीइंबर्समेंट मांग रहे थे. तो कोर्ट ने यही कहा कि ये मेरली एन इन्विटेशन टू ऑफर है, ये कोई ऑफर नहीं था. तो इसी वजह से आप रीइंबर्समेंट भी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्विटेशन टू ऑफर है. आप आओ ना आओ ये आपके ऊपर है. ठीक है, वी आर जस्ट इनवाइटिंग यू टू मेक अस एन ऑफर. तो आप आ रहे हो ऑफर बनाने, ऑफर मेक करने एंड देन वी विल एक्सेप्ट इट. Even अगर जब ऑक्शन होता है then auctioneer is not bound to accept even the highest bid because that highest bid is simply an offer. It is up to me to accept it or not. अब इसमें तीन इंपॉर्टेंट केस है, तीन इंपॉर्टेंट केसेस टॉपिक में है. एक मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना, हार्वे वर्सेस फेसी, ये इंपॉर्टेंट है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस
फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। तो इसको कहते हैं बूट कैश केस ऑल्सो, ठीक है। सो वी विल जस्ट सी दी फर्स्ट केस, मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना। इस केस में सिंपल सा है कि if a person is just merely giving a statement of the lowest price at which he could have sell it, then there is no implied contract to sell at that price only। अगर कोई शॉपकीपर आपको कोई लोएस्ट प्राइस बताता है कि भाई मैं तो इतने में ही इतने से कम में नहीं बेचूंगा या 100 रुपए से कम में नहीं बेचूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपए में बेचने के लिए रेडी है, ही इज जस्ट इनवाइटिंग इसके ऊपर आपको ऑफर करना हो, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिव था उसने डिफेंडेंट से 6,000 रुपए में एक लॉज खरीदने की बात करी। तो डिफेंडेंट ने रिप्लाई किया कि वी वोंट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन 10,000। तो उसने रिप्लाई किया कि वी वोंट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन 10,000। इसने ऑफर किया 6,000 का, उन्होंने कहा कि वी वोंट एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन 10,000। तो प्लेंटिव ने 10,000 को मान के प्राइस कि मैंने तो 6 में किया था और ये 10,000 ज्यादा ही है, तो वो 10,000 में ही उसने कॉन्ट्रैक्ट को सू कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि द स्टेटिंग द मिनिमम प्राइस इज नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर, ठीक है। तो इसी वजह से ये आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस केस में प्लेंटिव ने क्या किया, पहले उसने ये कहा कि क्या नाम है 6,000 में मुझे ये खरीदना है, तो और इसने ये भी कहा कि प्लेंटिव ने ये कहा इसके ऊपर का कोई प्राइस अगर आपको लगता है रीजनेबल तो आप हमें बताइए। तो इसमें डिफेंडेंट का ये रिप्लाई आया कि 10,000 से कम में तो हम बेच ही नहीं सकते। तो अगर ये एक मेयरली एन स्टेटमेंट है टू इनवाइट एन ऑफर सो दैट द प्लेंटिव कैन ऑफर मोर देन 10,000, लेकिन प्लेंटिव ने ये 10,000 को ही फाइनल प्राइस मान के उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो वही कोर्ट ने कहा कि इसमें यू आर नॉट मेकिंग एन ऑफर, इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड नाउ यू हैव टू ऑफर इट। सिमिलरली हार्वे वर्सेस पेसी में, तो इस केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो यही था कि अगर शॉपकीपर कोई मिनिमम प्राइस बता रहा है देन इट इज नॉट, ही इज नॉट कोटिंग द प्राइस, ओके। नाउ इन हार्वी वर्सेस फेसी, प्लेंटिव जो था उसने टेलीग्राफ किया विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस। सो डिफेंडेंट ने रिप्लाई किया कि लोएस्ट प्राइस ऑफ द पेन इज £900। तो प्लेंटिव ने इमीडिएटली 900 रुपए बेच के वो बोला कि अब पेन हमारा। तो वही कोर्ट ने कहा कि देयर वॉज नेवर एन ऑफर, इट वॉज लाइक डिफेंडेंट ने जो कहा कि द लोएस्ट प्राइस इज £900, इट वॉज never an offer which you accepted, it was merely an invitation to offer. So now you have to make an offer and it will be up to the defendant to accept it or not. तो उसने जो defendant ने कहा कि the lowest price is £900, वो एक invitation to offer and now you have to come and you have to quote price higher to it. तो इसमें similar है कि यही कि merely stating the lowest price does not amount to offer, ठीक है, इट इज मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब इसमें जो थर्ड केस है, दिस इज रिगार्डिंग डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विद अ प्राइस शीट्स अटैच्ड, वेदर इट इज एन ऑफर और वेदर इट इज अ इन्विटेशन टू ऑफर, ये इसमें क्वेश्चन है। तो जो सेल्फ सर्विस शॉप्स होती हैं, तो इस केस में प्लेंटिव ने एक मेडिसिन की बोतल उठाई दुकान से और दुकानदार ने बोला कि मैं आपको नहीं बेचूंगा नहीं, तो प्लेंटिव ने इसको सू कर दिया कि ये डिस्प्ले ऑफ गुड्स है, मतलब आपने ऑफर किया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, नाउ यू हैव टू टेक द मनी एंड यू हैव टू गिव मी द मेडिसिन। तो इसमें कोर्ट ने ये कहा कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस शीट्स अटैच्ड इज नॉट एन ऑफर बट इट इज मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर। आपको वो दवाई लेनी है एंड यू हैव टू go to the shopkeeper, giving him the offer and it is up to him whether he will accept it or not. इसका सिंपल रीजन ये है कि रिफ्यूज करने के लिए शॉपकीपर के पास बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि क्यों डिस्प्ले ऑफ गुड या कैटलॉग ऑफ प्राइसेस को ऑफर नहीं मानते, इसके वेरियस रीजंस फॉर रिफ्यूजल हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके पास एक लिमिटेड स्टॉक हो और अगर उसको हमने ऐसा ऑफर मान लिया तो इट विल लीड टू
एब्सर्ड रिजल्ट, अगर हमने डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो शॉप्स में लगे रहते हैं उसको ऑफर समझ लिया, तो अगर कोई भी कस्टमर एक बार भी उठा लिया सामान तो वो तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, फिर शॉपकीपर बोल सकता है कि आप इसको वापस नहीं रख सकते, नाउ यू हैव टू बाय। Therefore, it is merely an invitation to offer, उसने उठाया and it is up to him whether he wants to make an offer or not, तो वो वापस भी रख सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि पिकिंग ऑफ अ बुक फ्रॉम अ शेल्फ विल मीन बाइंग इट, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। अगर हम कोई शॉप में जाते हैं और कोई सामान उठाते हैं, वी कैन नॉट कंपेल द शॉपकीपर कि ये तो अब हमें खरीदना नहीं है ना। It will be up to him whether he wants to sell it or not. So we just have to make an offer that we want to buy this for this price which is attached, and it will be up to the shopkeeper whether he wants to accept it or not. तो ये था basic difference offer and invitation to offer में। In case of an offer, we make a proposal to do something to the other person with a view that we want his acceptance, his assent to our offer, ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफर में वी आर simply making a statement and we want the other person to make us an offer and it will be up to us to accept it or not। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट केसेस थे वो ये थे, पहले एग्जांपल्स थे कि कैटलॉग ऑफ बुक्स, टेंडर्स, बिडिंग, ऑक्शंस, ये सारे इन्विटेशन टू ऑफर के एग्जांपल्स हैं। और इसमें जो मेन केसेस थे हैरिस वर्सेस निकर्सन का, जिसमें ये था कि जो टेंडर ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है फॉर बिडिंग ऑक्शंस के लिए, वो भी अगर कैंसिल हो जाता है ऑक्शन तो वो हमें बियर नहीं करना, बिकॉज इट वाज मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर और आप खुद ऑफर देने आए थे। मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना में वी सॉ दैट मेयर स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस बाय द ऑफरर would not mean that it is an offer, it is merely an invitation to offer। हार्वे वर्सेस फेसी में भी हमने सेम चीज देखा। और फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट में वी सॉ दैट display of goods on the shop are merely an invitation to offer and they are not offer। So thank you all।